2021 simi tabuk 2026 jora sobakya tidi edisho tipramota hapango asungmani yagulo council bobono kok chap nogo tipasha hamkai riksajak edisi hamkai riksajak kebangma bill pass khlakya em ro piaba a bill lok tabuk bo ksajak tangi ksajak abuni yapang yari chena thangtani wo shawi manka tabuk bo hastefa kokungka governor aro signature ko approval yakhon hani bagi samung tangi maya edisi hamkai ne bagi tiptasa amtai hamkai ne bagi nango o bill pass ngani approval manani piaba maya ni bagino tabo khrang china nangkha didi edisibo je bill lok ksajak tongmani approval maya tongmani abuno dadi phat bill pass khlaidi shamka bubagra tei salkisa sekang hasani montri Sushanto Chaudhary Tripura hawa Tripura hastewo sakri khaini bagi PRTC nangliya hani sakai remani okni ko pothmano tui tini bubagra podirkishon mani ko debrma logi TTDC hapangni CEM rural debrmano tui tei kubuni andong rongno tui thangai soika hasepa eba governor Indra Sena Reddy narun thaniwo TD edition ni bill lok je ksajak tongmani abuno approval khairedi tei Tripura hastewo sakri mana thangtaniwo PRTC nangliya hamani abuno rosai khibdi o sanmungo governor bai malakha saka bubagra confidential. See, I'm not keeping well. I don't want to be remembered as a good politician. I want to be remembered as a good human being. And I can only be a good human being if I am honest and I speak what is in my heart. And that's the most important. सर डीसी की कुछ नौकरी को लेकर कुछ सवाल उठाए और ये हाईकोर्ट में भी चल रहा है। हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि हमको स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। No, his question is about ADC. I know ADC. The High Court has observed that also. I think that whatever we have to say, because the matter is in the court, but my personal view is not the view of the ADC. My personal view is that the TTAADC was created by an act of 6th schedule, and we are an autonomous body, and we should not follow the state reservation policy, because TTAADC has a word called Tribal Autonomous District. And the job was to empower the tribals in the TTADC. So we should be giving preference to tribals in the TTADC. And in the state, your reservation policy, that is fair and fine. But in TTADC, jobs should be given as per our autonomy and for the interest of the tribals. And as well as the minority non-tribals who are living there, even they should be given preference. But they cannot be given 70% of the jobs and only 30% of the jobs being given to tribals in the TTADC. That's my personal view. Of course, that's not the view of that is subjects. महाराज कल असेंबली शुरू होने वाले है, जो अभी गवर्नर साहब से आपने बात की है उस मुद्दे को क्या असेंबली में उठाने की कोशिश करेंगे आपके? और महाराज इस सवाल के संदर्भ में पार्टी क्या सरकार की साथ रहेगी असेंबली सेशन में? कुछ हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, हमारा खुद का व्यू है और हमारा अलायंस है बिकॉज ऑफ त्रिपुरा सॉकॉर्ड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो इश्यूज लोगों के हित में उसका बारे में बात नहीं करेंगे। एंड हमारे एमएलएस के साथ आज मेरा मीटिंग है 7:30 बजे और हम अपना स्ट्रेटजी सीएम रेसिडेंट में अपने एमएलए नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा खुद का डिनर है एंड हम अपने पार्टी से मिलेंगे क्योंकि हमारा खुद का डिनर। You have a minister also. Is the minister attending that? Two ministers. I will talk to them. I hope that they come and meet me. I'm also talking to everyone, even those who are not in touch with me. Now they have tried to get in touch with me. So I'll talk to them. I wanted him to get an update on the bills that we have sent to the governor, passed over the years by the district council, which is yet to get his assent. So I met the governor and I apprised him of the many bills that we have sent to the state government to be sent to the governor, which haven't been given his signature, and why there has been a delay. So I wanted to apprise him of that development. So I went and I met him. सर एग्जीक्यूटिव बॉडी के रिशवल के कोई प्रोग्राम Executive body टीटीएडीसी का after VC election on the basis of the performance, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको जगह मिलेगा। इसके लिए ये वेटिंग परफॉर्मेंस फर्स्ट करो, उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया जाएगा। बोलो तो किस बारे में आज यहाँ पर मैंने बोला है जैसे कि हमने TTADC से बहुत बिल्स पास किए हैं। लैंड का बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी का है, कस्टमरी बिल्स है, बहुत बिल्स हैं जो
इतने साल से हमने पास किया है काउंसिल में, हम भी तो एक इलेक्टेड बॉडी है, लोगों ने हमें वोट करके दिया है, तो हमने पास किया है और हमने ये बिल्स को हम भेजा है, लेकिन अभी तक ऑनरेबल राज्यपाल जी का उसमें सिग्नेचर नहीं मिला, इसके लिए हम इसको कानून नहीं बना सकते। तो उस इशू में मैंने गवर्नर साहब से बात किया है और चिट्ठी भी दिया है कि आप इसको प्लीज़ देखिए क्यों इतना डिले हो रहा है। ये अभी से डिले नहीं हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, हम हमारे आने से पहले हो रहा है। और अगर डिले होगा तो लोग हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं कि आपको हमने वोट किया लेकिन आपने हमारे लिए कानून क्यों नहीं पास किया। तो इसके लिए मैंने कोर्ट में राइटिंग था में ना दिया सर, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आपने इसको लेके ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी है कि हमने इतने बिल्स गवर्नर को भेजे हैं, नॉट ओनली दिस गवर्नर, इससे पहले भी 2007 से 18 बिल्स हैं जो गवर्नर के पास आज तक पहुंचे नहीं हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारा ज़मीन का बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का बिल है, हमारा कस्टमरी बिल्स है। तो ये सब बिल्स को अगर आप अप्रूव नहीं करेंगे तो लोग हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं और हम क्या बोलेंगे। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हैं इसमें और कहा है कि आप अगर आपको बिल ठीक नहीं लगता है तो आप उसको ना बोलिए या फिर हाँ बोलिए, लेकिन आप एक बिल के ऊपर 5 साल 10 साल बैठ नहीं सकते और यही हो रहा है। there's no time limit to this? इन द केस ऑफ तमिलनाडु, आर एन रवि का जो इशू था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 महीने से ज़्यादा गवर्नर कोई बिल के ऊपर नहीं बैठ सकता है। लेकिन त्रिपुरा के किस्से में हम लोग बिल डायरेक्टली गवर्नर को नहीं भेजते, हम डायरेक्टली बिल भेजते हैं टू द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो नोडल एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट तब ये बिल गवर्नर को भेजता है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि स्टेट गवर्नमेंट को हमने बिल भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने वो बिल गवर्नर को भेजा ही नहीं। तो अगर गवर्नर के पास वो बिल नहीं आएगा तो गवर्नर कैसे साइन करेगा। इसके लिए मैंने गवर्नर को कहा कि गवर्नर के पास वो अथॉरिटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से इंक्वायर करे कि इतने बिल्स अगर आपने भेजा है आपके पास तो आपने हमें क्यों नहीं उसको फॉरवर्ड किया। कुछ सीएम सर ने से कल आप पूछे थे why this tripartite agreement is immediately after आप ही का सवाल है। हाँ, so he said things are being sorted out. Well, I hope so, but I've got no information. Until the time, मैं आज I said this to the honorable governor also कि मुझे SRM का पॉलिटिक्स नहीं करना है जहाँ में लोग मेरे नियत के ऊपर सवाल उठाए, और मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं अभी तक लोगों को जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पा रहा, और इसमें मैंने पूरा कोशिश किया है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट हमारे लोगों को अधिकार त्रिपुरा अकॉर्ड में नहीं दी तो मैं अब लोगों के पास जाकर अलायंस के बारे में बात नहीं कर सकता। But don't you think this delaying process is also a political technique to weaken and frustrate and weaken your party? ताकि am I a Indian first or a politician first? You're Indian. So should I think about my people first or for my party first? But you leave the No, my point is it only me who's an Indian? Is it me only who thinks about my state first, or should I think about Tripura Motha first? The same question goes to people who are in CPM, in Congress, and of course in BJP. Should they think about Tripura and the people who are living in Tripura first, or should they think about their party? কংগ্রেস এবং সিপিএম এর দল থেকে সবসময় একটা অভিযোগ শোনা যায় যে প্রতিশ্রুতির পাহাড় অঞ্চল নিয়ে খেলছে, মানুষের বোকা বানাচ্ছে, সেই সব বিষয়ে অনেক রকমের তাদের অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে। তাদের এই সব অভিযোগগুলোকে আপনি কিভাবে মেনে নিচ্ছেন বা কিভাবে দেখছেন? I wish them all the best. उनको जो भी बोलना है, लेकिन दिल से, जितेंद्र चौधरी हो, सुदीप राय बर्मन हो, वीरजीत बाबू हो, गोपाल बाबू हो, सब लोग जानते हैं प्रद्योत चोर नहीं है। प्रद्योत दिल से अपने लोगों को कुछ देना चाहता है। लोग जानते हैं कि प्रद्योत कम्युनल भी नहीं है। लोग जानते हैं कि प्रद्योत के लिए उनके लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उनका पार्टी। एंड हियर मी आउट, उनका ये पॉलिटिक्स है भाई, उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके साथ आज अलायंस में नहीं हूँ। अगर कल मैं बीजेपी के संग अलायंस छोड़ देता हूँ तो वो भी हमारे पास आके बोलेंगे कि
महाराज ने ठीक किया छोड़कर अब हमारे संग आ। तब बीजेपी मुझे गाली देगी, ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं यही बात आपके दूसरे जर्नलिस्ट को बोल रहा था कि मेरे लिए अगर वी आर ऑल इंडियन तो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर स्टेट और शुड बी थिंक ओनली अबाउट माय पार्टी। एंड अगर लोगों को ज़मीन का अधिकार मिल जाता है, अगर लोगों को अभी आप देखिए ये जो कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ARTC, मुझे लगता है कि अगर कोई भी बाहर से आके नौकरी ले ले तो हमारे त्रिपुरा में पहले से इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका हम कैसा इशू को सॉल्व करेंगे। अभी और एक जजमेंट, एक ऑब्जर्वेशन आया है कि TTADC में हमें स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी को रखना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन आया है विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अगर TTADC में आज हम मैक्सिमम त्रिपुरा साहब को नौकरी नहीं देके किसी और को दे, और अभी ये जो PRTC का भी डिसीजन आया है, तो मतलब कि हम लोग अपने लोगों को ना हेल्प करके दूसरे स्टेट के लोगों को हेल्प करेंगे, तो ये अन्याय नहीं है। तो इसका क्या हमको चैलेंज नहीं करना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, हाई कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। आज VC इलेक्शन भी जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमें लगता है कि हमें पहले अपने लोगों के लिए बात करना चाहिए, ना कि हर चीज में हमें एक पॉलिटिकल पोजीशन। এই বিষয়ে কি কথা হয়েছে রাজ্যপালের তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই, লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই।